Hello students, good morning. Welcome to our online lecture. I am Dr. Trupti Lavankar and today we are going to discuss our last chapter of organic chemistry, that is amines. And the amines are the important functional group in organic chemistry like other functional groups. Other functional group means aldehydes, ketones, carboxylic acids, then phenol, alcohol, like that. So amines are also very important, and all of you students are familiar. This number of students are familiar about the amine. What is the formula of amine? How it will prepare? Because in many reactions that you have already learned in last chapters of organic chemistry, in that one of the product is amine in different reaction. Okay students, so that's why today we are going to discuss about the chapter number 13 is nothing but a amines. Now let's see introduction of amines. What is the meaning of amine, or what are the different types of amines, or what is the formula of functional group of amine? क्या होता है? Now see, amines in simple language we can say that amines are the compounds which are obtained from ammonia, or we can say amines are the derivative of ammonia. That means ammonia is the parent compound. What is the formula of ammonia? NH3, right? And ammonia is the parent compound, and ammonia is the parent compound, and from ammonia we have to prepare different type of amines compounds. Okay, so that means we can say that amines are the constituent and important class of organic compound which are derived by replacing one or more hydrogen atom of ammonia molecule by alkyl or aryl group. Understood? What is the definition of amine? Amines are the compound which are derived by replacing one or more hydrogen atom. One or more hydrogen atom, that means in case of ammonia there are three hydrogen atoms which are attached with one nitrogen atom, right? So one or more means one भी replace हो सकता है, two भी replace हो सकता है और three भी replace हो सकता है. So one or more hydrogen atoms replaced by a alkyl or aryl group. Okay, that is called as the amines. And amines are derivatives of ammonia. So already बताया, which are obtained by the one or two alkyl, two or more than two hydrogen atoms by alkyl group or aryl group. Simple. So these are the some examples of amines. What is this? This is CH3NH2. That means from ammonia, one hydrogen atom replaced by methyl group, right? In that case, C6H5NH2. Here, one hydrogen atom from ammonia is replaced by aryl group. This is C6H5. Now that means this is aryl group. Here, CH3NH, What is this? Parent is ammonia, right? Parent is ammonia. And ammonia, from ammonia, one or more, two or three hydrogen atoms replaced by alkyl or aryl group. So in that case, CH3NH, in that case, the two hydrogen atoms from the ammonia is replaced by two same methyl group. Okay. And here, CH3, CH3, CH3. Here, parent tha ammonia. All three hydrogen atoms are replaced by three methyl group. So it becomes this compound CH3 and CH3, CH3, or we can say CH3 by 3N. Understood? So these are some examples of amines or
examples of yes amines. Now see the structure of amine. Structure of amine. Now as we know, in last year, that means in 11th standard, you have already learned in nature of chemical bond, structure of compounds like CH3, like H2O, like CH4, CH4 and water molecule and the ammonia molecule, right? And on the basis of the structure, we can determine the hybridization state also and bond angle. Already आप लोगों ने learn किया in last year 11th standard में nature of chemical bond में, right? So अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या था? अमोनिया के केस में बॉन्ड एंगल क्या था आप लोगों को याद आ रहा होगा. एंड व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ अमोनिया, सॉरी नाइट्रोजन एटम इन केस ऑफ अमोनिया. सो एज वी नो, आप सभी लोगों को पता होगा कि हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, कैसे कैलकुलेट किया जाता है. तो मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक्स भी दी थी कि काउंट द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूडिंग लोन पेयर, राइट. पाई बॉन्ड्स को काउंट नहीं करना है. So in case of amine, now see here, as you can see on the screen, see here, this is the nitrogen atom considered, right? And as we know, nitrogen atom having a one lone pair, so this is one of the lone pair, right? And these are the three methyl group. मिथाइल ग्रुप भी हो सकते हैं, 2 मिथाइल ग्रुप भी हो सकते हैं, 1 मिथाइल ग्रुप भी हो सकते हैं, राइट. सो हियर द शेप क्या रहेगा, पिरामिडल शेप ऑफ ट्राइमिथाइल amine. This is trimethyl amine because 3 methyl groups. So the shape of this compound is pyramidal shape. ये पिरामिड के जैसे दिख रहे हैं, ठीक है. And bond angle, it is less than 109 degree because in case of methane, there is no any lone pair, so the bond angle in case of methane is 109 degree, right? But whenever lone pair is there, the repulsion takes place in case of lone pair, and in case of lone pair, bond pair repulsion is there, and because of that repulsion, the bond angle is decreases from 109 degree to 107 degree in case of ammonia. So here also bond angle is decreases from 109 degree. मतलब bond angle is less than 109 degree. Okay. And what is the hybridization state of nitrogen atom in case of this trimethyl amine? So here one lone pair is there and 3 bond pairs, right? One lone pair. Now this is one lone pair. एक lone pair यहाँ पे. And how many bond pairs? 3 bond pairs. एक ये वाला, एक दूसरा वाला, and here third one, right? Now this 3 plus 1 4 bond pairs complete हो चुके हैं, right? And whenever the 4 bond pairs are there, then the hybridization state is sp3. Now this is the short tricks. Count the only lone pairs and bond pairs. Don't count pi bonds. Understood? So the hybridization state is sp3. sp3 में अब 4 है, sp3 कैसे हो गया? तो s का पावर है 1, p का पावर है 3, 1 plus 3 4. Okay, you complete 4. So the hybridization state is sp3. Or you can say each of these 3 sp3 hybridized orbital of nitrogen overlap with the orbital of hydrogen or carbon depending upon the composition of amines. Geometry is trigonal pyramidal. Okay. Shape is pyramidal. Bond angle is less than 109 degree. And hybridization state is sp3. In case of amine, hybridization state of nitrogen atom is sp3. Remember that. This is very, very important term. Okay. Now, our next topic is classification of amines. Classification of amines. Now see here. Here, the classification of amines depend on the number of hydrogen atoms. किसके? अमोनिया के. Number of hydrogen atoms from NH3 is replaced by R or AR group. R means alkyl group and AR means aryl group. So जितने hydrogen atom replace होंगे उस हिसाब से उसका classification होगा. So now here nitrogen having it 3 hydrogen atom in case of ammonia. That means कितने? Max to max. Maximum कितने hydrogen atom replace हो सकते हैं?
3 हाइड्रोजन एटम, राइट। मतलब वहां पे क्लासिफिकेशन कहाँ तक हो सकते हैं, tertiary amines तक. Now the amines are classified into 3 ways. One is primary amine, secondary amine, and third one is the tertiary amine. Primary amine means, primary amine मतलब one hydrogen atom of ammonia is replaced by alkyl or aryl group. That means from NH3 इसमें से एक हाइड्रोजन एटम, सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा किससे, अल्काइल और अराइल ग्रुप से, मतलब R और AR ग्रुप से. 2 हाइड्रोजन एटम एज इट इज रहेंगे. सो द मॉलिक्यूल बिकम RNH2 और ARNH2. Now this type of molecules are primary amine. Examples: C2H5NH2, that is called as ethylamine. That means alkyl group हो गया. अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग अटैच कर दो तो वो हो जाएगा एनिलीन. Second classification is secondary amine. In case of secondary amine, 2 hydrogen atom of ammonia. किससे? 2 hydrogen atom of ammonia replaced by 2 same or different alkyl और aryl group. alkyl group भी हो सकते हैं, aryl group भी हो सकते हैं, वो same भी हो सकते हैं, different भी हो सकते हैं. Okay, so दोनों 2 hydrogen atom अगर replace हो जाए तो formula molecule become RNH R dash. मतलब ये अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट है. C2H5N/2NH. दैट मीन्स डाइथैलामाइन. यहाँ पे बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर सेम. हियर C2H5NH CH3. Again 2 hydrogen atoms replaced by one by ethyl group, another by methyl group. So the name is ethyl methyl amine. And aryl group अगर है तो one hydrogen atom is replaced by aryl group, another hydrogen atom is replaced by methyl group. So the compound become N-methyl aniline. Now the third classification is tertiary amine. Okay, here the 3 hydrogen atoms of ammonia, all 3 hydrogen atoms. अमोनिया के पास है ही कितने हाइड्रोजन एटम, 3 ही हाइड्रोजन एटम है, और तीनों के तीनों रिप्लेस हो जाएंगे एक तो अल्काइल ग्रुप से, वो सेम भी हो सकते, डिफरेंट भी हो सकते, या तो फिर अराइल ग्रुप से, वो भी सेम हो सकते या डिफरेंट हो सकते, राइट. सो द कंपाउंड is tertiary amine. Example is triethyl amine. Triethyl amine means all 3 हाइड्रोजन एटम अमोनिया के रिप्लेस किससे हो चुके हैं, अल्काइल इथाइल ग्रुप से. ठीक है, इथाइल ग्रुप से रिप्लेस हुए हैं. नाउ so the compound is triethylamine. In another example, this is nitrogen atom, 2 hydrogen atom replaced by methyl group, 2 methyl group, and 1 hydrogen atom is replaced by aryl group. So the compound is N,N-dimethyl aniline. So this is the classification of amine. Okay, how will you classify the amines? Primary, secondary, and tertiary amines. Amines are classified into 3 ways. One is primary, secondary, and tertiary, depending on the number of hydrogen atoms replaced by alkyl or aryl group. Understood? Now, there are some examples here. Now see, as you can see on the screen, the examples of amines of primary, secondary, and tertiary. Now, one of the example is that CH3NH C6H5. Now, what is this? Whether it is primary, secondary, or tertiary. Now this is primary, secondary. Why this is secondary? Because 2 hydrogen atoms from ammonia is replaced by 2, one is alkyl group, another one is aryl group. So this is secondary. मतलब ये कौन सा classification हुआ? This is secondary amine. Here nitrogen atom is attached with CH3, CH3, CH3. That means 3 CH3 groups. So all 3 hydrogen atoms replace हो चुके हैं by methyl group. So this is tertiary amine. That means this is 3 degree amine. आप लोगों को यहाँ पे क्या देखना है क्लासिफिकेशन में अमाइंस के, कि हाइड्रोजन एटम कितने गायब हो चुके हैं, किससे, पेरेंट अमोनिया से. जितने गायब होंगे उस हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन. अगर एक हाइड्रोजन एटम कम है और बाकी NH2 है तो प्राइमरी, 2 हाइड्रोजन एटम है
गैप है, एक ही हाइड्रोजन बचा है तो सेकेंडरी, और एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, तीनों के तीनों रिप्लेस हो चुके हैं अल्काइल ग्रुप से, तो टर्शियरी। बस इतना ही देखना है आप लोगों को अगर एग्जाम में आता है, आइडेंटिफाई द और द क्लासिफाई द अमाइंस। ओके, now see some more examples here. This nitrogen atom is replaced by one methyl group and two aryl groups, right? one is methyl group है और another aryl groups. नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन एटम नहीं बचा है, that means this is tertiary here. अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है. Now see here, this is NH2 और नाइट्रोजन को अटैच है ये बेंजीन, ये कौन सी है, साइक्लोहेक्सेन रिंग विथ मिथाइल ग्रुप. ये मिथाइल तो नाइट्रोजन को अटैच नहीं है, डायरेक्टली अटैच कौन है, ये साइक्लोहेक्सेन रिंग, राइट. और हाइड्रोजन एटम कितने रिप्लेस हुए अमोनिया का, एक ही हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ है, बाकी दो एज इट इज है. सो ये कौन सा हुआ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. नाउ दिस बिकम प्राइमरी बिकॉज ओनली वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाय दिस साइक्लोहेक्सेन रिंग. ओके, सो दिस इज प्राइमरी अमाइन. Here CH3, CH2, CH2, NH2. नाइट्रोजन को डायरेक्टली अटैच कौन है, CH2 ग्रुप, और दो हाइड्रोजन एटम उसके एज इट इज है, सेफ है पूरे. तो ये कौन सा हुआ, अगेन 1 डिग्री, दैट मीन्स प्राइमरी अमाइन. हियर benzene ring is attached with NH2 group, that means aniline. Name of this compound is aniline. This is also 1 degree. Here CH3, NH, CH2, CH3. So this nitrogen atom replaced by, sorry, this nitrogen atom having a only one hydrogen atom. Hydrogen atom having only one hydrogen atom, and two hydrogen atoms are replaced by one by methyl group and other by ethyl group. So this is 2 degree. And the last example is this. This nitrogen atom is replaced by two methyl group and one aryl group. That means all three hydrogen atoms get replaced. So that's why this is 3 degree amine. Okay. So again, these are some examples in the form of line structure. लाइन स्ट्रक्चर को आप लोगों को आना चाहिए कि कैसे ड्रॉ करते हैं और एंड हाउ यू कैलकुलेट दिस. सो दिस कॉर्नर कार्बन एटम 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब कितने भी लंबी चेन हो उसको आपको देखना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कि नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन एटम खुद के है. उसके 2 हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं, एक ही रिप्लेस हो चुके हैं ये लंबी लाइन से कार्बन के. सो दिस इज 1 डिग्री, करेक्ट. इधर कितना बड़ा मॉलिक्यूल है उसको नहीं देखना है, नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन एटम बचे उसको ही देखना है व्हाइल राइटिंग ए क्लासिफिकेशन. यहाँ पे इन दैट केस this nitrogen atom having a 2 hydrogen atom and one is replaced by this ring, not ring, this chain. So this is also 1 degree, right? In the example, in that case, this is NH2 group और NH2 group को ये वाली रिंग, सॉरी ये वाली चेन अटैच है, बट नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन एटम है. सो दिस इज also 1 degree. In fourth example, sorry, this is NH and here 2, 1 and 2, that means ethyl group is there. So नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन एटम बचे, ओनली 1 हाइड्रोजन एटम है, that means this is secondary. And in last example, here nitrogen atom is attached with 3 alkyl groups, so this is tertiary. There is no any hydrogen atom present, so that's why this is tertiary amine. Okay, now this is called as the tertiary amine. So this is all about the classification of amine. While writing the classification of amine, you have to see only the number of hydrogen atoms present on the nitrogen atom or the number of hydrogen atoms replaced by alkyl or aryl group. That's it. Understood? Now the next topic is nomenclature of amines. This is very, very important. Again, nomenclature of amines. Now again, as we know, while writing a nomenclature, there are 2 types of nomenclature. One is common name, another one is IUPAC name, right? Now in amines, in common name system of amines, aliphatic amines are named by prefixing alkyl group to amine. मतलब अल्काइल ग्रुप जो रहेगा ना उसको प्रेफिक्स लगाना है अमाइन्स. फॉर एग्जांपल अल्काइल अमाइन,
अगर मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल अमाइन, राइट. इथाइल ग्रुप है तो इथाइल अमाइन, करेक्ट. इन केस ऑफ कॉमन नेम. एंड इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन, ये तो था प्राइमरी अमाइन के लिए. इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन्स, व्हेन टू और मोर ग्रुप्स आर सेम, एक से ज्यादा ग्रुप्स अगर सेम है तो प्रेफिक्स डाई और ट्राई इज अटैच्ड बिफोर द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप. ओके, बिफोर द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप, dimethylamine, trimethylamine, लाइक दैट. ठीक है. अगर नाइट्रोजन को अटैच दो मिथाइल ग्रुप है विथ NH, सो द नेम बिकम dimethylamine. अगर नाइट्रोजन को 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, मतलब टर्शियरी अमाइन है, तो वी कैन से ट्राइमेथाइलामाइन, कॉमन नेम बिकम ट्राइमेथाइलामाइन. अंडरस्टूड. सो कॉमन नेम तो समझ में आ गया है कि प्रेफिक्स लगाना है अल्काइल को अमाइन एंड मोर देन 2 सेम ग्रुप्स अगर अटैच है तो डाई और ट्राई ये लगाना है बिफोर द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप. अंडरस्टूड. Now the next is IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature में थोड़ा different है. So in case of IUPAC nomenclature, amines are named as alkane amine. कैसे नाम लिखना है इसका? Alkane amine. The E of alkane is replaced by amine. Okay. अल्केन में क्या रहता है? अल्केन का स्पेलिंग क्या रहता है? ALKANE. सो तो ई रहेगा ना अल्केन का, वो रिप्लेस करना है अपने को अमाइंस के इन केस ऑफ IUPAC सिस्टम. सो डिराइव्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ ई ऑफ अल्केन बाय द वर्ड अमाइन. फॉर एग्जांपल CH3NH2, फॉर एग्जांपल CH3NH2, इसका कॉमन नेम क्या होगा? मिथाइल अमाइन. बट IUPAC नोमेनक्लेचर क्या रहेगा? अल्केन अमाइन. तो अल्केन मिथाइल का मतलब CH3 एक कार्बन एटम का अल्केन, मीथेन. मीथेन में का ई जो रहेगा लास्ट में अल्फाबेट, उसको रिप्लेस करके अमाइन लगाना है. सो द वर्ड बिकम मिथेन अमाइन. अंडरस्टूड. ई गायब है यहाँ से, ई की जगह पे कौन आया? अमाइन. इन केस ऑफ मोर देन वन अमीनो ग्रुप present at different position in parent chain, their positions are specified by giving the number to the carbon atoms bearing NH2 groups. Okay, मतलब जो पोजीशन पे अपने अमाइंस ग्रुप रहेंगे, एक से ज्यादा जब रहेंगे तो वो कंडीशन में, ठीक है, एक से ज्यादा अगर अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है अपने मॉलिक्यूल में तो उनकी पोजीशन वहां पे अपने को नोट डाउन करनी है. तो पोजीशन कहाँ नोट डाउन करोगे? सो the positions are specified by giving the number of carbon atoms bearing NH2 group and suitable prefix like di or tri is attached to the amine. And the letter of E of alkane is retained. मतलब हम लोगों ने फर्स्ट केस में देखा था कि अगर एक ही NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो अल्केन का E रिप्लेस करना है अमाइन से. बट एक से ज्यादा अगर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो अल्केन का E रिटेन रहेगा, मतलब E एज इट इज लिखना है. नाउ सी द एग्जांपल. देखो NH2 CH2 NH2, कितने NH2 ग्रुप प्रेजेंट है हियर? There are 2 NH2 groups. One is this NH2, another one is this NH2. 2 NH2 group present है. अपने को रूल क्या बोलता है कि in case of more than one amino group present at different position of the parent chain, their position are specified by giving the numbers to the carbon atoms. फिर अपने को कार्बन एटम को नंबर देने हैं क्योंकि इसकी पोजीशन लिखना पड़ेगा. तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन, कार्बन एटम को ही नंबर देना है, राइट. एंड नाम कैसे लिखना है? नाम लिखते समय by giving the number of carbon atoms bearing NH2 group and suitable prefix such as di, tri is attached to the amine and the E of amine alkane is retained. Now see, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पे 2 NH2 ग्रुप्स है, राइट. एंड CH2 मतलब दो कार्बन एटम का अल्केन इथेन. सो नेम क्या बनेगा? इथेन. इथेन का E एज इट इज रहेगा, ठीक है. और पोजीशन क्या है NH2 ग्रुप की? 1 और 2, फर्स्ट एंड सेकंड. कितने NH2 ग्रुप प्रेजेंट है? 2 NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसका एक प्रीफिक्स लगेगा डाई और ये अमाइन. सो द नेम बिकम
इथेन 1,2-diamine. क्या है नेम? इथेन 1,2-diamine. ओके, अब ये था अपना अल्काइल अमाइन. इन केस ऑफ अराइल अमाइन, NH2 ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग. ठीक है, अराइल ग्रुप में क्या रहता है? NH2 ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग. दैट मींस C6H5NH2, which is aryl amine, and in common name system it is known as aniline, and it is also an accepted by IUPAC name. Aniline is the name of C6H5NH2 which is accepted by a IUPAC name system और IUPAC system. ओके, तो अगर आपके एग्जाम में आता है C6H5NH2 और उसका कॉमन नेम IUPAC नेम पूछा जाता है एंड आप लोग लिखते हो एनिलीन, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है. While naming the aryl amine according to IUPAC system, suffix e of arine is replaced by amine. ओके, जब आप अरेल मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स का भी अगर नॉमेनक्लेचर लिखते हो तो सफिक्स ई है वो रिप्लेस हो जाएगा अमाइन से. तो दस IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ C6H5NH2 इज बेंजीन अमाइन. क्या है C6H5NH2 का IUPAC नेम? बेंजीन अमाइन. C6H5NH2 का नाम है बेंजीन अमाइन. ठीक है, और वी कैन राइट एनिलीन आल्सो. Now see the rules here. Now यहाँ पे मैंने शॉर्टकट रूल्स लिखे हैं शॉर्टली. मतलब इसके पहले की स्लाइड अगर आपको समझ में नहीं आई होगी ये वाली, तो ये आपको शॉर्टली बता देगा कि किसमें कैसे लिखना है. तो एलिफेटिक अगर अमाइंस है तो उसका नाम कॉमन नेम क्या रहेगा? एलिफेटिक अमाइंस में प्राइमरी का लिखते हैं हम लोग. ठीक है, तो उसका कॉमन नेम बनेगा अल्काइल अमाइन. ठीक है, अल्काइल अमाइन. एंड इट्स IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या बनेगा? अल्केन अमाइन, क्योंकि ई निकाल के वहां पे अमाइन अटैच करना है अल्केन के ई में. सो द वर्ड बिकम अल्केन अमाइन. NH2 लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन. NH2 ग्रुप कहाँ पे होना चाहिए? लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन पे. इफ 2 or 3 अमाइन NH2 ग्रुप्स आर प्रेजेंट. ठीक है, देखा ना हम लोगों ने ये एग्जांपल, 1, 2 या 3 NH2 ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो अल्केन का ई रिटेन रहेगा. दैट मीन्स उसको निकालना नहीं है. और पहले अपने को अल्केन का नाम लिखना है, फिर अपने को उसके लोकेंट लिखना है, फिर उसके बाद डाई ट्राई लगा के अमाइंस लगाना है. अंडरस्टूड? इन केस ऑफ सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन में कॉमन नेम लिखते समय क्या करना है? यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद प्रीफिक्स डाई और ट्राई. अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अपने को अल्काइल ग्रुप्स के नाम लिखते हैं. एंड कॉमन IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखते समय लार्जेस्ट अल्काइल ग्रुप को कंसीडर करना है एज अ पेरेंट अल्केन एंड स्मॉलेस्ट अल्काइल ग्रुप को कंसीडर करना है एज अ एन सब्स्टिट्यूएंट. नाइट्रोजन को डायरेक्ट अटैच सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए एन सब्स्टिट्यूएंट. ओके, इन केस ऑफ अराइल अमाइंस, एनिलीन और डेरिवेटिव्स ऑफ एनिलीन इज द कॉमन नेम. And while writing IUPAC nomenclature, aniline accepted by IUPAC name, the suffix e of arine is replaced by amine. Suffix e of arine is replaced by amine. Understood? So these are the some rules of amines. Now see the examples of amines here. Now see the examples here. Primary amines. Its common name here CH3NH2. Common name is methyl amine, and IUPAC name become alkane, methyl, 1 carbon atom का alkane, methane, and E of alkane is replaced by amine. Right? So the name become methanamine. In second example, CH3, CH2, NH2. How many carbon atoms? 3 carbon atoms. CH3, CH2 and CH2. That means 3 carbon atom attached with NH2. Common name become N-propyl amine. N क्यों लगा यहाँ पे? Because 3 carbon atoms are present in straight chain. Right? So N-propyl amine. And IUPAC nomenclature,
At which position NH2 group is present? At first position NH2 group is there. So here 1 नंबर आएगा यहाँ पे एंड 3 कार्बन एटम का अल्केन प्रोपेन 1 अमाइन. Okay, so in next example, NH2 group. This is also primary amine. Na? NH2 group is attached with this 3 carbon with that chain. Here CH3, CH and CH3. But at which position NH2 group is present? At second position. This is first and this is second. At second position NH2 group is present. That means this become isopropyl amine. And IUPAC nomenclature become propane 2 amine. Now in all 3 examples, for second, third example, only one NH2 group is present. So that's why while writing the IUPAC nomenclature, the E of alkane is replaced by amine, right? But here, in next example, there are 2 NH2 groups are present. So as we know, यहाँ पे क्या रूल होता है कि अगर एक से ज़्यादा NH2 ग्रुप अगर प्रेजेंट है अपने मॉलिक्यूल में, तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते समय अल्केन का E एज इट इज रहेगा और अमाइन और अल्किन के नेम के बीच में अपने NH2 के पोजीशंस के नंबर्स आएंगे. ठीक है. सो दिस इज NH2 CH2 CH2 NH2. कॉमन नेम हो गया इथिलीन डाइअमाइन. ठीक है. कॉमन नेम बिकम इथिलीन डाइअमाइन एंड IUPAC नोमेनक्लेचर बिकम इथेन 1,2 diamine. Now this is double bonded amine. This is CH2 double bond CH CH NH2. This become allyl amine. And common name हो गया. IUPAC nomenclature क्या होगा? Now this is propene ना. CH2 double bond CH CH2 is propene. And NH2 तो NH2 की पोजीशन लोकन कौन सा रहेगा? लोवेस्ट लोकन. तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी. ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड कार्बन एटम. तो एट फर्स्ट कार्बन एटम NH2 ग्रुप इज प्रेजेंट एंड एट सेकंड पोजीशन डबल बॉन्ड इज देयर. तो डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी और NH2 की पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी. एंड हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 3 कार्बन एटम्स. 3 कार्बन एटम का अल्कीन प्रोपीन. बट एट विच पोजीशन डबल बॉन्ड? सेकंड पोजीशन. सो द नेम इज prop2En. अब सेकंड पोजीशन डबल बॉन्ड की हो गई. अब अमाइन NH2 ग्रुप की पोजीशन 1 अमाइन. ठीक है. So the name become prop2En 1 amine. Now in case of aryl amine, this is benzene ring. Benzene ring का एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो चुका है NH2 से. So it become aniline or phenyl amine. Common name. And IUPAC nomenclature aniline भी लिख सकते हो या तो फिर benzene amine. Okay. Now here CH2 by 6 NH2. Again 2 NH2 groups are present. And now यहाँ पे दो NH2 group present है. And how many carbon atoms? 6 carbon atom. So the common name become hexamethylene diamine or hexamethylene diamine. And IUPAC nomenclature become hexane 1,6 diamine. In next example, this benzene ring के 2 hydrogen atom replace हो चुके हैं. One by CH3 group, another by NH2 group. Okay. तो ये इतना मॉलिक्यूल रहता है टोलोटीन, सॉरी टोलिन. ठीक है. अब NH2 ग्रुप है तो पैरा टोलोटीन, क्योंकि NH2 ग्रुप के मिथाइल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है? पैरा पोजीशन पे. सो NH2 पोजीशन के दिस मिथाइल की पोजीशन क्या है? फोर्थ. सो द नेम बिकम 4 मिथाइल एनिलीन. ओके. इन नेक्स्ट एग्जांपल दिस इज साइक्लोहेक्सेन रिंग और वहां पे एक हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो चुका है NH2 ग्रुप से. सो द नेम बिकम कॉमन नेम साइक्लोहेक्साइल अमाइन एंड IUPAC nomenclature cyclohexane amine, right? In next example, this benzene ring CH2 and NH2. अगर ये NH2 नहीं रहा तो ये हो जाएगा बेंजाइल ग्रुप, राइट? अब वहां पे NH2 है तो बेंजाइल ग्रुप को अटैच NH2 है. सो द नेम बिकम बेंजाइल अमाइन. एंड कॉमन नेम हो गया IUPAC nomenclature. ये NH2 किसको अटैच है? दिस कार्बन एटम को. और ये कार्बन एटम को कौन है अटैच? फिनाइल रिंग. सो ये फिनाइल रिंग तो हो गई सब्स्टिट्यूएंट. मेन अपना रहेगा ये कार्बन एटम. सो द IUPAC nomenclature become phenyl methanamine. Okay, phenyl methanamine. And the last example is this benzene ring. This is NH2 group और इसके पैरा पोजीशन पे है ये Br group. So this become para bromo aniline.
and IUPAC nomenclature become 4-bromoaniline और 4-bromobenzenamine, क्योंकि ये अगर Br को निकाल लो तो ये कौन सा कंपाउंड हुआ, एनिलिन ना, एनिलिन का सब्स्टिट्यूएंट रहेगा Br एनिलिन पे, so this become 4-bromoaniline or 4-bromobenzenamine. You have to write any one. Now this all examples जो है all are the primary amines. Now these are the nomenclature of primary amines. Now examples of secondary amine. In case of secondary amine, first example is CH3NH CH3. Here secondary amine मतलब 2 hydrogen atom replace हो चुके हैं methyl group से, same group है, so the common name become dimethylamine. And while writing IUPAC nomenclature in case of secondary and tertiary amine, क्या था कि एक को हम लोग पेरेंट कंसिडर करेंगे और दूसरे अल्काइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे. पेरेंट अल्काइल ग्रुप कौन सा रहेगा, जो लॉन्गेस्ट चेन वाला रहेगा, और शॉर्ट चेन वाला अल्काइल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर. तो यहाँ पे तो दोनों मिथाइल ग्रुप है, नो वन इज लॉन्गर नो वन इज शॉर्टर, सेम ही है, तो एक को सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करो, एक को पेरेंट कंसिडर करो. सो सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है, सो द वन बिकम व्हाट बिकम डायमिथाइल, और पेरेंट में भी एक ही कार्बन एटम है methanamine, that means the name become N-methyl methanamine. Next example CH3CH2NH CH3. Now here two different alkyl groups are present, one is methyl another one is ethyl. अब इसमें से बताओ कौन सा रहेगा शॉर्ट और कौन सा रहेगा लॉन्गेस्ट. लॉन्गेस्ट इज इथाइल जो कि रहेगा पेरेंट, और शॉर्ट मिथाइल है जो कि रहेगा सब्स्टिट्यूएंट. इन केस ऑफ IUPAC नेम, कॉमन नेम तो इजी है, इथाइल मिथाइल अमाइन. अल्फाबेटिकली लिखना है, ई पहले आता है, एम पहले आता है, सो इथाइल मिथाइल अमाइन. IUPAC nomenclature become methyl group considered as a N substituent, मतलब N methyl, और पेरेंट का अल्केन बनेगा इथेन से, इथेनामाइन. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज दिस इज द बेंजीन रिंग अटैच्ड विद NH3. कॉमन नेम इज मिथाइल फिनाइल अमाइन. एंड IUPAC nomenclature में अब सब्स्टिट्यूएंट कौन सा रहेगा, छोटा वाला, ये मिथाइल ग्रुप. सो द IUPAC nomenclature become N-methyl aniline or N-methyl benzenamine. लास्ट C6H5NH C6H5. अब यहाँ पे दोनों अराइल ग्रुप है, सो द कॉमन नेम इज डाइफिनाइल अमाइन. एंड IUPAC nomenclature इज, अब एक को सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे, एक को पेरेंट कंसिडर करेंगे. सो वन सब्स्टिट्यूएंट इज N-phenyl और दूसरा benzenamine. Understood? So this is the nomenclature system for secondary amine. And lastly, the examples of tertiary amines. IUPAC nomenclature rules for secondary and tertiary amines are same. Now here, in this example, you have to see here CH3, CH3, CH3 and nitrogen atom. Means nitrogen atom के all three hydrogen atoms are replaced by methyl group. So the common name is trimethylamine. Now in that case again two alkyl groups जो short रहेंगे which is considered as a N substituent, and one alkyl group जो कि long रहेगा, मतलब एक ज्यादा कार्बन वाला रहेगा, उसको हम लोग parent alkane consider करेंगे while writing IUPAC nomenclature of tertiary amine. So here two methyl groups considered as a substituent. वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को अटैच है, so that's why NN dimethyl, and one methyl group considered as a parent alkane. So one carbon atom का parent alkane methane, उसको amine लगा दो methanamine. So the name is NN dimethyl methanamine. अब NN ये दो बार क्यों आया है, क्योंकि नाइट्रोजन आइटम को अटैच टू मिथाइल ग्रुप से, डायरेक्टली अटैच टू मिथाइल ग्रुप से. अगर आप लोग वहां पे सिर्फ ऐसा लिखते थे कि N डायमिथाइल अमाइन, तो वहां पे उसका रिप्रेजेंटेशन लगेगा कि एक ही मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन को डायरेक्टली अटैच है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज दिस C2H5N CH3 CH3. Now here one is ethyl group and two are the methyl groups. इसका कॉमन नेम बनेगा इथिल इथाइल डायमिथाइल अमाइन. IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते समय जो छोटे अल्काइल ग्रुप से उसको हम लोग NN सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे और बड़े वाले मिथाइल अल्काइल ग्रुप को अपना पेरेंट अल्केन.
So these two methyl groups represented as a aniline dimethyl, और जो ethyl group है which is considered as a ethanamine. In next example CH3 and C3H7 C2H5. अब यहाँ पे तीनों अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट है, एक है प्रोपाइल एन प्रोपाइल, एक है अपना ये C2H5 इथाइल और एक है अपना मिथाइल. सो कॉमन नेम बिकम अल्फाबेटिकली लिखो इथाइल मिथाइल एंड प्रोपाइल अमाइन, राइट. एंड आईपीसी नोमेनक्लेचर में अल्काइल इथाइल और मिथाइल ग्रुप बनेंगे अपने एन सब्स्टिट्यूएंट, उसको भी हम लोग अल्फाबेटिकल लिखेंगे. तो ई पहले आता है तो एन इथाइल, एम पे बाद में आता है एन मिथाइल, और ये एन प्रोपाइल अमाइन है तो ये फर्स्ट पोजीशन पे NH2 ग्रुप रहेगा, दैट मींस प्रोपेन 1 अमाइन. द आईपीसी नोमेनक्लेचर बिकम एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन. Next example is CH3 CH3 and C2H5 CH3. Now here this is our nitrogen atom जिसको तीन alkyl groups attach है. One is ethyl, another one is methyl, and third one is this propyl. But वो propyl कौन सा है? Isopropyl. So the name become common name ethyl methyl isopropyl amine. And IUPAC nomenclature ethyl और methyl group बनेंगे and substituent and ethyl and methyl. और नाइट्रोजन आइटम कौन से पोजीशन पे, कार्बन के सेकंड पोजीशन पे, सो प्रोपेन 2 अमाइन एंड इथाइल एंड मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन. दिस इज द नेम ऑफ आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड. एंड द लास्ट एग्जांपल इज दिस बेंजीन रिंग, नाइट्रोजन को अटैच है, मिथाइल ग्रुप है और ये दूसरा मिथाइल ग्रुप है. तो एनएन डाइमिथाइल एनिलीन इज द कॉमन नेम और आईपीसी नोमेनक्लेचर इज एनएन डाइमिथाइल बेंजीनामाइन. आप ये भी आईपीसी नोमेनक्लेचर अगर लिखते हो तो भी रॉन्ग नहीं आएगा. अंडरस्टूड? सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ आईपीसी नोमेनक्लेचर सिस्टम. ओके, नाउ our next topic is preparation of amines. So here in this chapter in your syllabus only 4 to 5 methods of preparation of amines. One is by the ammonolysis of alkyl halide, second one is by Mendes reduction reaction, by Hofmann bromide degradation, and by diethylamine synthesis we have to prepare amine. Now the first method of preparation is by ammonolysis of alkyl halide. That means our starting material is alkyl halide, and as we know alkyl halide means क्या रहता है, RX, right? अल्काइल हैलाइड्स नाम में ही दिया हुआ है अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, मतलब अल्काइल हैलाइड का अपने को अमोनोलिसिस करना है. एंड अमोनोलिसिस किससे होता है? बाय यूजिंग अमोनिया, राइट? सो हियर द इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज यूज्ड फॉर दिस रिएक्शन. ओके, एंड दिस रिएक्शन forms compound that is primary amine, and this primary amine जैसे तैयार होता है it behaves like a nucleophile और वो फिर से अटैक करता है दूसरे अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल के साथ, फिर अपने को मिलेगा सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन से फिर टर्शियरी अमाइन, एंड फाइनली क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट एज अ प्रोडक्ट मिलेगा. ओके, नाउ सी द रिएक्शन. Here this NH3 group reacts with the alkyl halide. अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, राइट? तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और X एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा. ठीक है, तो अब ये रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप होती कैसे? सी, पहला अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ, वन हाइड्रोजन आइटम ऑफ अमोनिया रिप्लेस बाय अल्काइल ग्रुप, सो वी गेट दिस RNH2. Now this RNH2 act as a nucleophile. ये फिर से अटैक करेगा ये अल्काइल हैलाइड पे, ठीक है? तो इसमें से और एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा बाय अल्काइल ग्रुप, सो इट बिकम R2NH. फिर से ये R2NH रिएक्ट करेगा RX के साथ, देन वी गेट R3NH एंड R3 सॉरी यहाँ पे NH नहीं चाहिए, ठीक है? यहाँ पे ओनली R3N एंड R3N reacts with again RX, that means alkyl halide, we get is quaternary ammonium salt. This is substituted amine. Now this is the general reaction. Okay, actually how this reaction takes place in the reaction chamber, see here. By using example, see here, when ethyl bromide, ठीक है? अपना starting material क्या है?
ethyl bromide. Ethyl bromide is heated with alcoholic solution of ammonia. यहाँ पे solution कौन सा लेना है? अल्कोहल के प्रेजेंस में अमोनिया का solution लेना है. That is called as the alcoholic solution of ammonia in sealed tube. ये रिएक्शन हो रही है सील ट्यूब में, जो ओपन चेम्बर में नहीं हो रही है. At 373 Kelvin gives the mixture of ethylamine, dimethylamine, triethylamine along with the tetraethyl ammonium bromide. Now see here. C2H5Br. This is ethyl bromide reacts with the ammonia. यहाँ पे क्या होगा, ये इथाइल ग्रुप NH3 का एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके उसके साथ अटैच हो जाएगा और HBr बाहर निकल रहा है, राइट. सो वी गेट दिस इथाइल अमाइन. बट ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती है, ये रिएक्शन फिर से रिएक्ट होता है. ये जो इथाइल अमाइन यहाँ पे तैयार हुआ है ना, ये फिर से रिएक्ट करेगा सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल ब्रोमाइड, क्योंकि वो एक्ट हो रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल. ये फिर से यहाँ पे अटैक करता है ये इथाइल ग्रुप पे, ये फिर से हाइड्रोजन एटम बाहर निकल जाता है. तो यहाँ पे दो इथाइल ग्रुप अटैच होंगे और हाइड्रोजन एटम HBr के साथ चला गया. अगेन दिस डाइथाइल अमाइन react with next molecule of ethyl bromide, we get this triethyl amine with HBr. अब तो हाइड्रोजन एटम पूरे खत्म हो गया. आप लोग बोलोगे अब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा चौथी बार? यहाँ पे तो हाइड्रोजन एटम ही नहीं है, फिर भी ये नाइट्रोजन चुप नहीं बैठता है, वो फिर से एक्ट होता है एज ए न्यूक्लियोफाइल. अब कैसे एक्ट होगा? आप लोग भूल रहे हो कि नाइट्रोजन के पास है एक लोन पेयर, जिसके कारण वो न्यूक्लियोफाइलिक अटैक दिखा सकता है. तो ये जो ट्राइथाइल अमाइन है ना, ये चौथे मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा और ये फिर से इथाइल ग्रुप को अपने पास खींच लेगा. एंड वी गेट दिस C2H5 पॉजिटिव. तो नाइट्रोजन ने अपनी लोन पेयर लूज कर दी, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव. और Br पे कौन सा चार्ज रहता है? नेगेटिव. सो दिस बिकम साल्ट. और वो साल्ट का नाम क्या है? 4 इथाइल ग्रुप है, सो टेट्राइथाइल. अब NH पे है पॉजिटिव चार्ज, तो उसको हम जब भी पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन एटम पे रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम. और Br है तो ब्रोमाइड. ठीक है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज टेट्राइथाइल अमोनियम ब्रोमाइड and it is also called as the quaternary ammonium salt. Okay, so in short, this reaction is written in this manner. NH3 reacts with RX, gives RNH2, again RX के साथ react करते तो R2NH, again उसको RX से react करते तो R3N, RX के साथ react करते तो finally we get this product. Okay, so this is called as the ammonolysis of alkyl halide, which is one of the important reaction of preparation of amine. Now this reaction कौन सी? ये ammonolysis. This ammonolysis have some disadvantages, which gives the mixture of primary, secondary and tertiary amines and also quaternary ammonia salt. Means as we know, ये रिएक्शन स्टॉप कहाँ पे होती है? क्वाटरनरी प्रोडक्ट की. तो अपने को प्रोडक्ट में कितने सारे प्रोडक्ट मिलेंगे? यील्ड मिलेगा प्रोडक्ट के मिक्सचर का, प्राइमरी भी मिलेगा, सेकेंडरी भी मिलेगा, टर्शियरी भी मिलेगा और क्वाटरनरी भी मिलेगा. ओके, बट इफ वी वांट टू प्रिपेयर प्राइमरी अमाइन in the form of major product, so at that time we have to use excess of ammonia. ठीक है, by taking the large excess of ammonia. And the order of reactivity of alkyl halide is alkyl iodide is more reactive than alkyl bromide, which is more reactive than alkyl fluoride. ये तो बहुत बार आया है कि क्यों alkyl iodide is more reactive than this, or why alkyl bromide is more reactive than RCl on the basis of size, atomic size of halide. जितनी ज्यादा हाइड्रोजन की साइज रहेगी उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ रहेगा और उस हिसाब से वहां पे वो इजीली ब्रेक डाउन होगा. On the basis of that, reactivity is decides. Now the next method of preparation is by the reduction of nitro compound. नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं तो अपने को अमाइन मिलेगा, राइट. नाइट्रो कंपाउंड मीन्स NO2 group. So nitro compounds are reduced to amine by passing hydrogen gas in presence of finely divided nickel, palladium or platinum, and also by the reduction with metals in acidic media. Now here कौन सा मेटल लिया है? Ascent. ठीक है, which is reacts with the HCl. Formation of this stannous chloride with the nascent hydrogen, with the liberation of this hydrogen gas, and this nascent hydrogen is useful for the reduction of nitro group. So generally this reaction is written in this manner.
RNA2, that means nitro group, is undergo reduction by means of this nascent hydrogen gas. अब ये nascent hydrogen gas कैसे तैयार हुआ है? By the reaction of SN with concentrated HCl. ठीक है, तो एरो पे आएगा ये SN with HCl. अब यहाँ पे रिडक्शन करना है. रिडक्शन मीन्स क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आइटम एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आइटम, राइट. तो यहाँ पे O2 को निकाल लेंगे हम लोग, और कितने हाइड्रोजन आइटम लगेंगे? तो यहाँ पे हाइड्रोजन NH2 तैयार होने के लिए 2 हाइड्रोजन आइटम, 2 हाइड्रोजन आइटम्स यहाँ लग जाएंगे. बट O2 तो ऐसे एयर में नहीं जाएगा ना, उसको भी कुछ ना कुछ लगेगा, तो उसका कन्वर्जन हो जाता है H2O में, राइट. उसका कन्वर्जन हो जाएगा H2O में. तो कितने हाइड्रोजन आइटम लगेंगे? 4. सो हाउ मेनी नेसेंट हाइड्रोजन आइटम्स रिक्वायर्ड? ये 2, नाइट्रोजन को लगेंगे 2 और ऑक्सीजन को लगेंगे 4. सो दैट्स व्हाई 6 नेसेंट हाइड्रोजन आइटम्स आर required for the reduction of nitro compound. Okay. Nitrobenzene on reduction by tin and concentrated HCl or by passing H2 with palladium in ethanol gives aniline. Here nitrobenzene, ठीक है, C6H5NH2. It undergo reduction again, same reagent, tin with concentrated HCl. नाइट्रोजन को कितने हाइड्रोजन लगेंगे NH2 होने के लिए? 2 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 4 हाइड्रोजन आइटम. सो हाउ मेनी नेसेंट हाइड्रोजन आइटम्स आर रिक्वायर्ड? 6 नेसेंट हाइड्रोजन आइटम्स आर रिक्वायर्ड, and we get this product, aniline with water molecule. Now this is the second method of preparation of amine by the reduction of nitro compound. By the reduction of nitro compound. Similarly, LIAH4 in ether is also used to reduce NO2 to NH2 group. ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी यूज होता है इन ईथर के प्रेजेंस में फॉर द रिडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप. ठीक है, तो वह NO2 ग्रुप का रिडक्शन किस में हो जाएगा? NH2 में हो जाएगा. तो एग्जांपल देखो यहाँ पे नाइट्रो इथेन है और LiAH4 विद ईथर अगर यूज करते हैं तो वी गेट दिस इथेनामाइन. Understood? One more example is this. This is 1-nitropropane. It undergo reduction by using stannous chloride. That means SN with the concentrated HCl. We get this propane 1-amine. Okay. Now this is the second method of preparation of amine by the reduction of nitro group. Here reagent कौन सा रहेगा? Reagent ध्यान में रखो आप लोग. Reagent is tin with concentrated HCl, or we can use, or we have to use nickel, platinum, palladium. ठीक है, इन एसिडिक मीडियम. नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड. अब इसके पहले हम लोगों ने नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन किया, अब हम लोग यहाँ पे साइनाइड ग्रुप का रिडक्शन करेंगे. मतलब रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक है, सो रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज अल्केन नाइट्राइल्स. Now this nitriles or alkyl cyanides on reduction with the lithium aluminium hydride. यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? lithium aluminium hydride, और catalytic hydrogenation produces primary amine. Now this reaction is used for ascent of amine series. That is for the preparation of amines containing 1 carbon atom more than the starting amine. इसका meaning क्या? This is very very important sentence. In this reaction, the product obtained that contain more than one carbon atom more than the starting amine. मतलब स्टार्टिंग कंपाउंड से एक कार्बन एटम ज्यादा मिलेगा अपने को प्रोडक्ट पे. अब वो कैसे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि अगर आपको अमाइन की चेन को बढ़ाना है या अल्काइल हैलाइड की चेन को बढ़ाना है तो इसके लिए रिएक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं. एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज मेंडियस रिएक्शन, reduction reaction. This reaction is known as Mendius reduction reaction. Here lithium aluminum hydride use कर सकते हो या तो फिर सोडियम इन इथेनॉल यूज कर सकते हो as a reducing agent. See here. This is alkyl cyanide. Formula क्या है? RC triple bond N. Now it undergo reduction. Right? Reduction मतलब क्या होता है? Addition of hydrogen atom. कहाँ पे होगी? Across the triple bond. राइट, अक्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड. अब कार्बन का कन्वर्जन अपने को करना है CH2 में और नाइट्रोजन का कन्वर्जन अपने को करना है NH2 में. हाउ मेनी हाइड्रोजन आइटम्स आर रिक्वायर्ड? 2 लगेंगे कार्बन को और 2 लगेंगे नाइट्रोजन को, तो 4 हाइड्रोजन आइटम्स आर रिक्वायर्ड. वी गेट दिस RCH2NH2. राइट,
मतलब यहाँ पे देखो चेन में है ये साइनाइड ग्रुप, ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल है साइनाइड ग्रुप में, बट ये कार्बन का कन्वर्जन तो CH2 में हो गया है ना, मतलब एक कार्बन एटम की चेन बढ़ गई ना, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा था कि दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर द एक्सेंट ऑफ अमाइन, दैट मीन्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस कंटेनिंग वन कार्बन एटम मोर देन द स्टार्टिंग अमाइन, and this reaction is Mende's reaction. Reducing agent is sodium with ethanol. Now this is example. ये तो जनरल रिएक्शन थी. Now take one example. Acetonitrile. Acetonitrile में CH3 C triple bond N. That means ethane nitrile. ठीक है. Name of this compound is ethane nitrile. It undergo reduction by using sodium with ethanol. अब ये ethane nitrile है. ठीक है. अब इसका कन्वर्जन हो गया है CH3 CH2 NH2 में. अब नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ethylamine और ethanamine. One more example. Sorry. Understood, student? Now this is the reduction of cyanide by using sodium with ethanol or lithium aluminium hydride. Now the reduction of amide. देखते हैं हम लोग. By the reduction of amides. अब नाइट्रो का रिडक्शन किया, साइनाइड का रिडक्शन किया, अब अमाइड का करते हैं. तो अमाइड का फॉर्मूला क्या रहता है? अमाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है CH3CONH2. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अमाइड इज CONH2 इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइड. नाउ इसका अब अपने को रिडक्शन करना है. तो रिडक्शन करना है मतलब NH2 ग्रुप ऑलरेडी है, सिर्फ कार्बन का ऑक्सीजन को हटाना है और वहां पे हाइड्रोजन अटैच करवाने हैं, राइट. तो ऑक्सीजन का कन्वर्जन तो हो जाएगा H2O में और कार्बन का कन्वर्जन हो जाएगा CH2 में. तो हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्ड? अगेन 4 हाइड्रोजन एटम्स आर रिक्वायर्ड. So primary amines having the same number of carbon atoms can be obtained by the reduction of amide by lithium aluminum hydride in ether or by sodium with ethanol. So lithium aluminum hydride ether के फॉर्म में यूज कर सकते हो या तो फिर सोडियम विद इथेनॉल भी यूज कर सकते हो. यहाँ पे क्या होगा? अगेन दिस कार्बन एटम इज अंडरगो रिडक्शन, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे अटैच हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन एटम्स वाटर ऑक्सीजन के साथ चले जाएंगे जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर में. We get this ethyl amine. Okay, so by the reduction of amide we have to prepare amine. Understood? Now these are the some examples. Examples क्या है? CH3 CH2 CO NH2. This is propanamide. It undergo reduction by using lithium aluminum hydride with ether, formation of CH3 CH2 NH2, that is propanamide. If we use N-methyl propanamide, this is N-methyl propanamide. Again undergo reduction, क्या होगा यहाँ पे? CH2 NH CH3, that means secondary amine तैयार होगा. So N-methyl propanamide. And in third example, this is CH3 CH2 CO and CH3 CH3 N-dimethyl propanamide. तो अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन चला जाएगा, CH2 अटैच होगा, तो CH3 CH2 CH2 और ये नाइट्रोजन को अटैच रहेंगे 2 मिथाइल ग्रुप, तो N-dimethyl propanamide. Understood? So these are the some examples of preparation of amines by using by using amide as a functional group. Now the next method of preparation, that is very very important method of preparation of amine is by Gabriel Thalamide synthesis. By Gabriel Thalamide synthesis, this is very very important synthesis. Now नाम में समझ में आ जाता है कि गैब्रियल मतलब क्या होगा? नेम ऑफ साइंटिस्ट. थैलिमाइड मतलब क्या होगा? कि जो हम लोग सबस्ट्रेट यूज करने वाले हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइड, तो उसकी सिंथेसिस. ठीक है. सो थैलिमाइड अल्काइलेशन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइड. देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गैब्रियल तो नेम साइंटिस्ट का रहेगा और थैलिमाइड जो हम लोग यूज करेंगे एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइड्स. नाउ इट इन्वॉल्व्स 3 to 4 स्टेप्स. इसमें 3 से 4 स्टेप्स रहेंगे इंपॉर्टेंट. फर्स्ट रहता है फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड फ्रॉम थैलामाइड.
सॉरी थैलिमाइड ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक क्योज। अब जैसे वहाँ पे पोटेशियम सॉल्ट तैयार होता है, फिर तैयार होगा एन अल्काइल थैलिमाइड फ्रॉम द पोटेशियम सॉल्ट बाय रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड, एंड लास्टली alkaline hydrolysis of an alkyl thalamide to form corresponding primary amine. Okay, now see the examples here and see the reaction here. This is very very important reaction student. See, this is our starting material. कौन सा starting material? थैलिमाइड. थैलिमाइड का फॉर्मूला क्या रहता है? C6H5, now C double bond O, C double bond O, NH. Okay, C6H5, C double bond O, C double bond O, NH. This is called as the thalidomide. Now it is reacts with alcoholic KOH. अब यहाँ पे अल्कोहलिक KOH एक्ट होगा न्यूक्लियोफाइल. वो क्या करेगा? ये हाइड्रोजन एटम का एब्स्ट्रैक्ट करेगा. जैसे ये हाइड्रोजन को खा लेता है, ये लोन इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएंगे. नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये के जो रहेगा पोटेशियम, वो नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा. राइट, नाउ दिस बिकम द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड. In next step, it is reacts with alkyl halide. अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक टेक्स प्लेस, मतलब SN2 रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं कि बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस. अब ये एक्ट होगा न्यूक्लियोफाइल, ये अल्काइल ग्रुप पे बैक साइड अटैक करेगा. SN2 रिएक्शन में पढ़े हो ना आप लोग, और ये X चला जाएगा बाहर. तो ये नाइट्रोजन अल्काइल ग्रुप पे अटैक करता है, तो अपने को मिलेगा दिस N अल्काइल थैलिमाइड, N अल्काइल थैलिमाइड, और ये पोटेशियम के साथ चला जाएगा X. So we get this KX. That means potassium halide. Now this is the second step, formation of N-alkyl thalamide. Now in next step, this N-alkyl thalamide reacts with the NaOH. अब ये जो NaOH है, मतलब this OH is attack on this carbonyl carbon atom. यहाँ पे दो कार्बोनिल कार्बन है, तो यहाँ पे दो कार्बोनिल कार्बन पे वो 1 by 1 अटैक करता है. तो पहले ये वाले कार्बन पे अटैक करो. देखो यहाँ पे क्या होता है रिएक्शन में. ये कार्बन पे वो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक जैसे करता है, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे. राइट, अब ऑक्सीजन बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज. ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज इज नॉट पॉसिबल, ये फिर से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो कार्बन की वैलेंसी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी ना. तो ये बॉन्ड हो जाएगा, फिर ब्रेक. कार्बन क्या करेगा? कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे. ठीक है, अब हो गया यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O NA, मतलब ये वाली स्पीसीज यहाँ पे तैयार हो जाएगी. अब बचा कौन? ये वाला. जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन सॉरी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन पे तो नेगेटिव चार्ज आएगा ना. Now next NaOH molecule attack on this carbonyl carbon atom. जैसे अटैक करता है, फिर से ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे. ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा. ऑक्सीजन बोलेगा मुझे नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज में नहीं रहना है, तो मैं फिर से इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास शिफ्ट करता हूँ. कार्बन तो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाएगा. तो कार्बन वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, सो मतलब यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक चुका है, और नाइट्रोजन पे रहेगी नेगेटिव चार्ज. सो इट बिकम स्पीसीज अपने को मिलेगी ये वाली, बट अपने इंपॉर्टेंट स्पीसीज है ये दिस RNH2. इसमें से दो स्टेप यहाँ पे नहीं शो हुए, तो अपने को मिलेगा ये RNH2 ग्रुप. ठीक है, दैट इज प्राइमरी अमाइन, एंड दिस इज अवर डिजायर्ड प्रोडक्ट. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? फर्स्ट स्टेज में तो थैलिमाइड रिएक्ट करेगा अल्कोहलिक KOH के साथ. जैसे अटैक होता है हाइड्रोजन को वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. वी गेट दिस पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड. पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड रिएक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड. वी गेट दिस N अल्काइल थैलिमाइड. दिस इज ascent रिएक्शन. ठीक है, N अल्काइल थैलिमाइड के साथ रिएक्ट करेगा एक्वियस NaOH. एक्वियस NaOH एज अ न्यूक्लियोफाइल कार्बन कार्बन एटम पे अटैक करता है, तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक. तो ये हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन को टच हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली दूसरा NaOH मॉलिक्यूल ये कार्बन एटम पे अटैक करेगा, जैसे ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और नाइट्रोजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. तो ये दूसरा NaOH का हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन के पास अटैच होके दिस वी गेट दिस RNH2 ग्रुप. ओके, एंड दिस इज आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट, दैट मीन्स प्राइमरी अमाइन. So by using this Gabriel thalamide synthesis, we
have to prepare only, or we can prepare only primary amine, वो भी aliphatic amine. Second, aromatic amines we cannot prepare by this method. क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते? क्योंकि यहाँ पे जो अटैक हो रहा है इन दिस स्टेप, कौन सी स्टेप पे? ये वाली सेकंड स्टेप में, यहाँ पे जो अटैक हो रहा है ना, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, वो भी SN2, और SN2 अटैक अल्काइल एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड में ही होता है, एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड में नहीं होता है. आप लोगों ने हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन में स्टडी किया है, ठीक है? तो यहाँ पे बैकसाइड अटैक ये सिर्फ एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड में ही होता है, एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड में नहीं होता है. तो वहाँ पे एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड हम लोग यूज नहीं कर सकते, राइट? सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लोग सिर्फ एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड ही प्रिपेयर करेंगे, एरोमेटिक अमाइंस प्रिपेयर नहीं कर सकते. सॉरी, एलिफेटिक अमाइंस ही प्रिपेयर हो सकता है, एरोमेटिक अमाइंस प्रिपेयर नहीं हो सकते, बिकॉज aryl halides do not undergo nucleophilic substitution with the anion formed by ethylamine. Understood? Now this is the very important method of preparation of amines, which is nothing but a Gabriel thalamide synthesis. And the last method of preparation is by Hofmann degradation. By Hofmann degradation. It is also called as Hofmann rearrangement, or Hofmann bromide degradation, or Hofmann hypobromide degradation. There are many names. Simply Hofmann degradation. अब Hofmann is the name of scientist. Degradation मतलब breakdown, short करना, छोटा करना चेन को, ठीक है? उसी को हॉफमैन रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं कि वहाँ पे अल्काइल ग्रुप रीअरेंज होता है, सो दैट्स हॉफमैन रीअरेंजमेंट. हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन बोला जाता है क्योंकि हॉफमैन तो नेम साइंटिस्ट का है. ब्रोमामाइड मतलब एक ब्रोमीन रहेगा, एक अमाइड रहेगा, और डिग्रेडेशन मतलब शॉर्ट करना, ठीक है? नाउ सी, this method is very important laboratory method for the preparation of amine. ये लेबोरेटरी मेथड है, ये हम लोग लेबोरेटरी में परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, अमाइंस को तैयार करने के लिए. नाउ हियर कन्वर्जन ऑफ अमाइन an amide into primary amide, ठीक है, with 1 कार्बन एटम लेस देन अमाइड. यहाँ पे जो तैयार होता है अमाइन, वो 1 कार्बन एटम लेस तैयार होता है देन द स्टार्टिंग मटेरियल बाय द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन एंड alkali NaOH और KOH is known as Hofmann reaction. अब यहाँ पे अपने स्टार्टिंग मटेरियल कौन है? दिस इज अमाइड ग्रुप. ये है अपना अमाइड, दूसरा है अपना ब्रोमीन, तीसरा है अपना KOH. तो प्रोडक्ट क्या रहेगा? यहाँ से CO तो बाहर ही निकल जाएगा ना, CO जो CO2 के फॉर्म में बाहर निकल हो जाता है, वी गेट NH2. अब देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे डिग्रेडेशन हो रहा है, यहाँ पे कार्बन आइटम बाहर जा रहा है, तो डिग्रेडेशन हो रहा है ना, लॉन्ग चेन का शॉर्ट चेन में कन्वर्जन हो रहा है. तो NH2 तैयार हो जाएगा, फिर ब्रोमीन, KBr और K2CO3 और H2O. these are the side products. ये सब प्रोडक्ट्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. our desired product is this RNH2 with KBr with K2CO3 and H2O. okay, now see the mechanism of this reaction. now here आपको मैकेनिज्म कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट आप लोगों को अंडरस्टैंड होने के लिए यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म की स्लाइड्स तैयार की है. विदाउट मैकेनिज्म समझ में नहीं आता कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है. So see here, this is amide. RCONH2 is the amide. Now it is firstly treated with the alkali. OH, KOH और NaOH के साथ ट्रीट हो रही ना, तो ये क्या करता है ना, OH ग्रुप ये एक हाइड्रोजन को निगल लेता है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है.
तो ये क्या बनेगा, H2 बाहर निकल रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, और नाइट्रोजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ए एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये ब्रोमीन है, Br, तो ये ब्रोमीन पे अटैक कर सकते हैं, दूसरा ब्रोमीन Br माइनस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। सो वी गेट दिस ब्रोमामाइड। तैयार हो गया ब्रोमामाइड। अब ये ब्रोमामाइड का हो जाएगा डिग्रेडेशन, इसीलिए बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। नाउ द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कली, मतलब KOH और NaOH जो भी यूज किया होगा, ये फिर से आता है और फिर से क्या करता है, जो नाइट्रोजन के पास वाला हाइड्रोजन है ना, उसी पे नजर रहती है उसकी, उसको फिर से खा लेता है। तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बट ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर जा रहा है, तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देके जाते हैं ना, तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब नाइट्रोजन हो गया इम्बैलेंस, राइट। अब नाइट्रोजन क्या करेगा, उसके जो लोन इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ पे कार्बन के बीच में वहां पे शिफ्ट करेगा। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड आते हैं, कार्बन बिकम इम्बैलेंस, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया नेगेटिव, ये वाला स्ट्रक्चर तैयार होगा। फिर तो ऑक्सीजन बोलेगा मैं नेगेटिव फॉर्म में क्यों रहूं, मुझे भी स्टेबिलिटी गेन करनी है, ये फिर से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए भेज देगा। जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड तैयार होते हैं कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये वाले कार्बन की वैलेंसी हो जाती है 5। तो ये कार्बन क्या करता है, अल्काइल ग्रुप को बाहर निकाल लेता है इन द फॉर्म ऑफ R+, और वो चला जाता है नाइट्रोजन की तरफ, रीअरेंज हो जाता है, इसीलिए उसका नाम है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये नाइट्रोजन की तरफ रीअरेंज हो जाता है। जैसे ये नाइट्रोजन की तरफ रीअरेंज होता है, ब्रोमीन एज अ बेटर लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। ये तो सबको पता है कि हैलोजेंस आर द बेटर लिविंग ग्रुप। ब्रोमीन इन द फॉर्म ऑफ Br- बाहर निकल जाता है। तो देखो अपने को फाइनल क्या मिला प्रोडक्ट, ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड तैयार किया, आ गया ये, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, और ये अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन का अटैच हो गया। सो व्हाट इज दिस, द कंपाउंड बिकम आइसोसाइनेट। क्या है ये प्रोडक्ट, आइसोसाइनेट प्रोडक्ट। नाउ एंट्री होती है अपनी वाटर की। अब वाटर की जैसे एंट्री होती है, देखो क्या होता है। अब ये स्टेप मैंने यहाँ पे शो की है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आइसोसाइनेट ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N R। अब ये अपना H2O। वाटर अब यहाँ पे कौन से ग्रुप पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन जो रहेगा ना वाटर को, ये अटैक करेगा ये वाले कार्बन पे, क्योंकि उसके दोनों साइड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन एक साइड में, एक साइड में नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे वो कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे कार्बन पे अटैक करता है, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होकर नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन पे जैसे शिफ्ट होता है वो नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो ये स्ट्रक्चर में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वैसे ही है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच का एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया है, अल्काइल ग्रुप एज इट इज, और यहाँ पे अटैच है HOH। अब ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी हो गई, तो ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन एटम है ना, ये क्या करेगा, ये वाले हाइड्रोजन जो वाटर का हाइड्रोजन एटम है उसको एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो वी गेट दिस स्पीसीज, ये एरो की तरफ देखो अपने को ये मिलता है, ये हो गया NHR, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये बन गया OH, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम चला गया, राइट। नाउ हियर अगेन दिस मॉलिक्यूल, ये जो कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड O है, और ये ऑक्सीजन है। यहाँ से CO2, यहाँ से CO2 एज अ गैस बाहर निकल सकता है, बिकॉज यहाँ पे एंट्रोपी हेल्प करती है बाहर निकलने के लिए। बट ये CO2 निकालने के लिए हाइड्रोजन को यहाँ पे आना चाहिए ना, तो ये कार्बन जो है ना, ये बॉन्ड जैसे ब्रेक करता है, हाइड्रोजन यहाँ पे नाइट्रोजन को अटैच हो जाता है, एंड वी गेट दिस RNH2, एंड CO2 एज अ गैसियस मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी हेल्प करती है टू रिमूव द CO2 गैस, ठीक है, to remove the CO2 gas. So we get these primary amine as a desired product by using this Hofmann bromide degradation. Now see here, I repeat one more time. पहले हम लोगों ने लिया amide,
फिर यहाँ पे अल्कली यूज की, अल्कली क्या करेगा, एक हाइड्रोजन एटम को एब्स्ट्रैक्ट करता है, एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है तो नाइट्रोजन पे आता है नेगेटिव चार्ज, इट इज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो ब्रोमीन पे अटैक करता है तो ब्रोमीन उसको अटैच हो जाता है एंड वी गेट इज ब्रोमामाइड. अगेन नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कली अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द नाइट्रोजन एटम, फिर से यहाँ पे खा लेता है इसको, फिर से नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आता है. अब नाइट्रोजन बोलते हैं मुझे नेगेटिव फॉर्म में नहीं रहना है, मुझे चाहिए स्टेबिलिटी, तो वो कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं. कार्बन के साथ जैसे बॉन्ड फॉर्म होता है, कार्बन हो जाता है 5 वैलेंसी का, तो वो कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं. ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन बोलेगा मुझे भी स्टेबिलिटी चाहिए, वो फिर से नेगेटिव पाई बॉन्ड तैयार करता है. इसी केस में ये जो कार्बन का अल्काइल ग्रुप है वो रीअरेंज हो जाता है नाइट्रोजन के पास और ब्रोमीन निकल जाता है, तो वी गेट दिस आइसोसाइनेट. अब एंट्री होती है वाटर की. वाटर क्या करते हैं, कार्बन एंड कार्बन एटम पे अटैक करते हैं ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन कहाँ पे अटैच होते हैं, नाइट्रोजन पे. सिमिलरली अपने को मिलता है कार्बोनिक एसिड एंड फ्रॉम दिस एसिड CO2 एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ गैस बाहर निकल जाता है एंड वी गेट दिस प्राइमरी अमाइन बाय यूजिंग दिस ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, Hofmann bromamide degradation reaction. Now see the examples. यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखो. दिस इज एसिटामाइड CH3CONH2 रिएक्ट विद Br2 विद KOH. अपने को क्या करना है, इसमें से CO2 बाहर निकाल लेना है और प्रोडक्ट लिखना है, क्योंकि डिग्रेडेशन है ना, तो CO2 को बाहर निकाल लेना और CH3NH2 को अटैच कर लेना. हो गया CH3NH2 KBr K2CO3H2O. यहाँ पे बेंजामाइड है, बस CO2 को बाहर निकालना है, बस CO2 को बाहर निकाल लो. C6H5NH2 KBr K2CO3H2O. दिस इज बेंजाइल अमाइड C6H5CONH2. फिर से यहाँ से CO2 निकाल लो और अपने को मिलेगा बेंजाइल अमाइड C6H5COCH2NH2 with KBr K2CO3 twice H2O. Okay, so this is the reaction of method of preparation of amine by using Hofmann bromamide degradation or Hofmann rearrangement, or it is also called as the Hofmann degradation reaction. Okay students, now in next lecture we will see the physical properties of amines. Now till then, stay happy and stay safe. Okay students, bye.